Good morning everyone. I am Dr. H.S. Kumawat, Assistant Professor in the Department of ABST in SPC Government College अजमेर। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में OR ऑपरेशन रिसर्च का इंट्रोडक्शन समझा था। व्हाट इज़ द ऑपरेशन रिसर्च, इम्पोर्टेंस ऑफ OR। आज हम देख रहे हैं टेक्निक्स ऑफ OR। देयर आर वेरियस टेक्निक्स यूज फॉर सॉल्व द प्रॉब्लम इन वेरियस एरियाज। नाउ द इम्पोर्टेंट टेक्निक्स used in the OR are linear programming, transportation and assignment model, queuing theory, which is also known as waiting line theory. Now the next technique is inventory control system, replacement problems, network analysis. In this technique we use the CPM, means critical path method, and the another is PERT method, project evaluation and review technique. CPM and PERT method, probability theory, mathematical techniques, sequencing models, dynamic programming models, competition models, combined models. Now we discuss one by one in the short. The important techniques is linear programming. Linear programming is an optimization technique to solve systems of linear constants with a linear objective function. The purpose of business is minimization of cost and maximization of profit. The next technique is transportation and assignment model. In this technique we find the optimal solution for minimize the total cost. There will be various alternates available in the question, and we use the transportation model to solve the problem and find out the optimum solution for minimize the cost. Now the next technique is queuing theory, waiting line theory. Queuing theory allows a business to understand and improve queuing times for customers and at the same time workforce management. In the queuing theory there is queue and queue of service provider and service taker. क्यूइंग थ्योरी में हम देखें तो दो तरह की क्यू हो सकती है, एक तो सर्विस प्रोवाइडर और दूसरी कस्टमर। कस्टमर लिमिटेड सर्विस फैसिलिटी वाले सर्विस सेंटर पर रैंडमली आते हैं, और यदि क्यू अधिक लंबी होगी तो कस्टमर के वेटिंग टाइम में भी इंक्रीज़ होगा, उनका वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, और ऐसी स्थिति में कस्टमर के दूसरी जगह जाने का डर बना रहता है।
लेकिन यदि सर्विस सेंटर की कैपेसिटी में हम वृद्धि की जाए कर देते हैं और तो इसके कारण उनका अधिकांश भाग आइडल पड़ा रहता है। इस कंडीशन को भी हम अच्छा नहीं मानते। तो बेकार कैपेसिटी और वेटिंग टाइम, इन सबको हम ध्यान में रखते हुए सर्विस सेंटर पर जो अवेलेबल ऑप्टिमम सर्विस कैपेसिटी है उसका हम निर्णय लेते हैं। क्यूइंग थ्योरी में क्यू में जो वेटिंग करने वाले कस्टमर्स हैं उनकी हम क्वांटिटी, वेटिंग टाइम, सर्विस सेंटर की आइडल कैपेसिटी की कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टिकट विंडो पर जो खड़े हुए कस्टमर्स होते हैं, एयरपोर्ट पर एरोप्लेन्स जो उतरने के लिए वेट कर रहे होते हैं, इसी प्रकार रिपेयरिंग के लिए रिपेयर करने वाले के पास रखी हुई मशीन्स, ये सभी कस्टमर की कैटेगरी में आते हैं। नाउ द नेक्स्ट मॉडल इज इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स। Inventory control for a company is complicated and depends on many decisions. For example, purchasing, warehousing, shipping, tracking. The most used algorithms for inventory management are EOQ, Economic Order Quantity, Inventory Production Quantity, and ABC analysis. Now we see next technique in the short form, replacement problems. Optimizing the replacement of materials that are known to fail after a certain time of usage for expensive items. Example, machinery, cars, computers, etc. There is a huge cost for a company when replacing them too late, but also when replacing them too early. जो यूज़ में ली जाने वाली वस्तुएं हैं उनकी जगह हम उसकी जगह फ्यूचर में जो रिप्लेस करेंगे उसको ही हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। जैसे मशीन पर डेप्रिसिएशन लगता है और आफ्टर 10 years, 15 years और अदर पीरियड, तो हम आफ्टर 10 years उस मशीन को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम पहले से एक फ़ंड बनाते हैं, तो जो उसी को हम रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स में इंक्लूड करते हैं। रिप्लेसमेंट मॉडल टेक्निक ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस पर्पज़। Now we see the another technique of OR is network analysis. In network analysis, an application is represented as a graph to be optimized. In graph theory, graphs exist of nodes and edges. Each node is a point and each edge indicates whether there is a connection between certain different nodes. Two methods of OR that can help here are the CPM and PERT. The abbreviation of CPM is critical path method and the PERT is project evaluation and review technique.
नेटवर्क एनालिसिस में हम एक ग्राफ बनाते हैं। सीपीएम टेक्निक और पर टेक्निक दोनों में सेम नेटवर्क बनता है, सेम ग्राफ बनता है, लेकिन जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो उनके मेथड्स डिफरेंट होंगे। उसके अंतर्गत हम सीपीएम मेथड यूज करेंगे तो उसके अंतर्गत सॉल्यूशन करेंगे, और यदि हम पर्ट यूज कर रहे हैं तो उसके अनुसार सॉल्व करेंगे। पर्ट के अंतर्गत हम 3 टाइप्स या टाइम एस्टिमेट्स लेते हैं। एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं, लिस्ट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ऑप्टिमम ड्यूरेशन फॉर द प्रोजेक्ट कैलकुलेट करते हैं, उसका मिनिमम ड्यूरेशन भी कैलकुलेट करते हैं। जो 3 टाइम एस्टिमेट्स होते हैं वह होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और एस्टिमेटेड, यानी TO, TM और TP। यदि हम TE कैलकुलेट करते हैं तो TO + 4TM + TP डिवाइडेड बाय द 6, और हम उसके बाद वेरिएंस भी कैलकुलेट करते हैं। जब हम ग्राफ बनाते हैं यानी नेटवर्क बनाते हैं तो क्वेश्चन में एक्टिविटी होती है, प्रीडिसेसर एक्टिविटी होती है और उसका टाइम पीरियड होता है। उसके अकॉर्डिंग हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं उस प्रोजेक्ट का, और फिर इवेंट्स पर नंबर अलॉट करते हैं। उसके बाद हम वेरियस पाथ्स, उनका टाइम कैलकुलेट करते हैं और फिर क्रिटिकल पाथ निकालते हैं। फिर एक्टिविटी शेड्यूल, उसमें हम अर्लीस्ट स्टार्ट, लेट स्टार्ट, अर्ली फिनिश और लेट फिनिश कैलकुलेट करते हैं। टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी सी द प्रोबेबिलिटी थ्योरी टेक्निक। प्रोबेबिलिटी में हम डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी और डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क और डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी ज्ञात करते हैं। थैंक यू।